All right, we're cutting across to the Rajya Sabha. The Lok Sabha has been adjourned as of now. Of recommendations of leak observations contained in the 409th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change, demand for grants 26-27 pertaining to the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology. B. The status of implementation of recommendations of leak observations contained in the 411th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Forests, Environment, Climate Change, on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Thank you, Chairman, sir. Shriman Gajendra Singh Shekhawat ji. Chairman, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 376th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 25-26 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Honorable members, I have admitted the notice received from Shriman Dr. Jitendra Singh ji for moving the motion of consideration. I am coming back, please. Consideration of the public examination, prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha. Today in Rajya Sabha by grant of waiver under Rule 123 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Council of States, that is Rajya Sabha. Accordingly, a supplementary list of business for today has been issued for taking up this bill for consideration and passing. Honorable members, the copy of the bill as passed by the Lok Sabha was circulated to members electronically through members portal around 3:30 p.m. yesterday. In view of the short time period available to members, I have decided that those members who decide to give notices of amendments to the said bill may do so now till 12:30 p.m. today, so as to enable the Secretariat to process and circulate the list of amendments. Notices received after 12:30 p.m. will, however, not be processed. Sir. Yes. सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एक जिद पर अड़े हुए हैं और एक मतलब अब देखिए इस समय क्या होगा। आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ। आपके परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हंगामा कर रहे हैं। मानव देखिए कुछ बात हो जाए। आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं। अब अभी लीजिए यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर प्लीज अटैच टू द चेयर। सर तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति। यही तो कह रहा हूं मैं और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर बुलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order and I am going into the matters raised with permission. Shriman Prihas Chik Paraik. Shriman माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के राज्य
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित हासीमारा हवाई अड्डे से के संबंध में महत्वपूर्ण जनहित में एक विषय सदन में उठाना चाहता हूँ। हासीमारा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकटवर्ती नागरिक हवाई अड्डे अभाव एवं स्थानीय निवासी, चाय बागान के श्रमिक, विद्यार्थियों, पर्यटक एवं रक्षा कर्मियों तथा व्यापारिक समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हासीमारा को उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। पूर्व में हासीमारा कोलकाता मार्ग का आवंटन भी किया गया, किंतु संबंधित एयरलाइंस की परिचालन बंद होने के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि विमान सेवा के लिए सिविल एन्क्लेव स्थापित करने हेतु 38 एकड़ भूमि की आवश्यकता है तथा यह परियोजना भूमि हस्तांतरण एवं वैदिक स्वीकृतियों के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। इस बजट सेशन में नया सरकार का जो बजट हुआ 2026-27 माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस बजट में प्रस्ताव दिया गया कि हासीमारा एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटन किया जाए। अंततः मैं भारत सरकार से आग्रह एवं प्रार्थना करता हूं, हासीमारा हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन सर्विस की स्थापना हेतु लंबित समय से औपचारिकता को पूर्ण किया जाए, भूमि हस्तांतरण एवं आवश्यक कार्यों में तेजी लाया जाए एवं संशोधन उड़ान योजना के अंतर्गत कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी एवं अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित नागरिक विमान सेवा यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। यह पहल उत्तर बंगाल के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करेगी, डुअर क्षेत्र का पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग एवं आर्थिक विकास की गति देगी और देश की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र के संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। धन्यवाद। श्रीमान